وقت آ گیا ہے ایران کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ تعطل کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ہمارے درمیان 4 روز پہلے، 3 روز پہلے، 2 روز پہلے، 1 روز پہلے اور آج بھی بات چیت ہوئی۔ بات چیت کس انجام پر پہنچے گی کوئی نہیں جانتا۔ ایران 47 برس سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں مذاکرات میں پہلی شرط یہ ہے کہ ایران آبِ ہرمز کو کھولے۔ آبِ ہرمز کھولنے کے بعد بھی ایران پر عائد پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ افزودہ یورینیم سے دستبرداری اور جوہری پروگرام سے متعلق معاملات طے ہونے پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ ایران اب جوہری پروگرام کے بعض ایسے پہلوؤں پر بات چیت پر آمادہ دکھائی دیتا ہے جن کا وہ ماضی میں ذکر تک کرنے سے گریز کرتا تھا۔ مذاکرات کے ذریعے معاہدہ ہونا یقینی نہیں، ایسے اشارے ملے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکرات میں اپنی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ امریکی مطالبہ ناقابل قبول، حملے کی صورت میں نئے محاذ کھولنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کہتے ہیں ایرانی فوج کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہے۔ دشمن کو جارحیت پر مختلف نوعیت کی فوجی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میدان جنگ اور ہتھیاروں کی اقسام بھی مختلف ہوں گی۔ جنگ بندی کے دوران ہماری عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی انسپیکٹر بریگیڈیئر جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ مکمل سرنڈر کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن ایرانی قوم کبھی نہیں جھکے گی۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ ناگزیر ہے۔ ہم نے ابھی مکمل صلاحیتیں ظاہر نہیں کی۔ جنگ میں نیٹو بھی شامل ہوتی ہے تو بھی ہمیں پریشانی نہیں۔ تاجروں کے لیے خوشخبری، حکومت نے دکانوں اور کاروباری مراکز کی بندش کا وقت بڑھا دیا۔ دکانیں، بازار، مارکیٹیں، شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ شادی ہالز اور تقریبات کے مقامات رات 10 بجے تک کھلے ہوں گے۔ ریسٹورانٹس اور کھانے پینے کے مراکز رات 11 بجے تک کھلے رکھیں گے۔ ٹیک اوے اور ڈیلیوری سروسز اوقات کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت جاری اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ جاری کفایت جاری اقدامات کا جائزہ۔ کمیٹی نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومتیں وفاق کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہدایات پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ میدان میں آ گئے سیاسی پہلوان۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر۔ نواز شریف کا گلگت میں جلسہ۔ بلاول نے اسکردو میں میدان سجا لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی ایکٹیو۔ نون لیگ کے قائد نے کہا نون لیگ کے علاوہ کسی پارٹی نے یہاں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ کسی پر تنقید یا برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سڑکوں کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس علاقے کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ ہم نے ہائیڈل پاور منصوبے شروع کیے، وہ اب تک مکمل کیوں نہیں ہوئے؟ شہباز شریف سے کہوں گا یہاں کے ایئرپورٹ کو بڑا کریں۔ ہماری حکومت بنتی ہے تو ہر دوسرے ماہ یہاں آؤں گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر طنز، کہا ایک مہمان آئے ہیں کہیں برا نہ مان جائیں۔ پیپلز پارٹی کے منصوبے بھی گنوا دیے، کہا ایک وزیر نے آ کر بتایا 100 میگا واٹ بجلی میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ پروفیسر صاحب یہ آپ کے دائیں ہاتھ کا کام ہے تو ابھی تک کیا کیوں نہیں؟ پروفیسر صاحب ہم اتنی بجلی بنائیں گے کہ کم قیمت پر اسلام آباد کو بیچیں گے۔ گلگت بلتستان کی زمین اور وسائل پر پہلا حق یہاں کی عوام کا ہے۔ حق ملکیت دلوائیں گے، اسلام آباد کو ماننا پڑے گا۔ گلگت بلتستان کے وسائل عوام کے ہیں۔ جو اختیار سندھ، کے پی، پنجاب کے پاس ہے وہی گلگت بلتستان کے پاس ہوگا۔ بدقسمتی ہے کہ حکمران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے۔ قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وفاقی بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ حکومت حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ حکام قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے ابھی تک قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کی طلبی کا سمن نہیں ملا۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس بھی مؤخر۔ حکومت کے IMF کے ساتھ PSDP اور بجٹ پر دوبارہ مذاکرات۔
बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NHA को 264 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना। सूबाई मंसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSDP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख़्वाहां। FBR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वज़ारत ख़जाना को हिदायत दी। IMF ने PSDP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया। MQM ने बजट तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। कराची के लिए 25 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। ग्रीन लाइन मंसूबे के फंड फौरी जारी किए जाएं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ न डाला जाए। 18 लाख सालाना आमदन तक टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 25% इजाफा हो। सहाफ़ी के सवाल पर अमीनुल हक ने जवाब देते हुए कहा, 28वीं आईनी तरमीम पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी भी जल्द हिमायत करेगी। 28वीं तरमीम आएगी और पास भी होगी। सनती तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकारी से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात तरजीहात में शामिल हैं। मुतबादिल तवानाई ज़राए के लिए जाम हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए माहिरीन से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। तमाम वज़ारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जंगबंदी दावों तक महदूद। लबनान के शहर मरवानिया पर इसराइली हमले में खातून और 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद शहीद, कई अफराद जख्मी। ताइर के हस्पताल पर भी हमले, 127 अफराद जख्मी। मार्च से अब तक शहदा की तादाद 3100 हो गई। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजी जख्मी। गजा में भी सेहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, 3 अफराद शहीद, कई घर मिस्मार। जनूबी लबनान में हमले बंद नहीं करेंगे, इसराइली वज़ीर दिफा का ऐलान। इसराइल कोर्ट्स का कहना है, फौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। इसराइल का हदफ हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। खलीज अरब से यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। सदारती मुशीर UAE अनवर का कहना है कि अब मामलात का जायज़ा लेना नागुज़ीर है। ये खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमज़ायकी और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर होना चाहिए। बहरीन ने अपने शहरियों के ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला के बयान में कहा गया कि ये इक़दाम कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले का जवाब। पाकिस्तानी इनकलाब ने दुश्मन के MSC सारसिका नामी जहाज पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। ईरानी फौज के बयान में कहा गया कि हमले से जहाज पर धमाका हुआ। हर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मज़ीद 24 बहरी जहाज आपने हॉर्मज़ से गुजर गए। पाकिस्तानी इनकलाब का बयान, कहा तमाम जहाज़ों ने बाकायदा इजाज़त दी और राब्ते में रहते हुए आबी गुजरगाह अबूर की। खलीज फारस और आपने हॉर्मज़ में शरपसंद गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कुवैती हमनसब शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई और आलमी पेशरफ पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के मसलसल सालिसी किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। इसहाक़ डार ने खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का मज़बूत बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ और करीबी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक।
सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द जहनुम वासिल, कार्रवाइयाँ मस्तूम, नौशकी, ज़ाहरी, खुजदार और कीच में की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन 24 मई ट्रेन हादसे के बाद किए। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और देसी साख्ता बम बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा मुल्की अमन व इस्तेहकाम के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। बजट से कबल हुकूमत को रेवेन्यू केस में बड़ा झटका। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। अदालत के मुताबिक टैक्स कानून के सेक्शन 31A में अबहाम है। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई पर इजाफी टैक्स आयद था। पोल्ट्री फार्म्स को कानून के तहत टैक्स इस्तिस्ना हासिल है। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबका बुरी तरह पिस रहा है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत बजट में रिलीफ के इक़दामात करे। माहाना 1,25,000 रुपए तनख्वाह तक इनकम टैक्स मुकम्मल ख़त्म किया जाए। बजट मंजूर करने की बात अलीमा खान ने वज़ीर आला KP को टोक दिया। कहा सुहेल आफरीदी आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? बजट मंजूरी से पहले बानी PTI से मुलाकात करवाने का मुतालबा करें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। वफाकी बजट भी पास नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई। KP का वज़ीर आला बानी PTI तब्दील कर सकते हैं, बाकी किसी में जुर्रत नहीं कि वो हिला भी सके। बानी PTI से मुलाकात के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $93.75 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। हनवर्ड इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,021 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं का राज। बादल भी बरसे। रुझान में आंधी से मुख्तलिफ हादसा। 24 घंटे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। इस्लामाबाद सेक्टर G10 में तेज हवाओं के बायस दरख्त गाड़ी पर गिर गया। ड्राइवर शदीद जख्मी। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं से तबाही। दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के पोल्स गिर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अंडरपास पानी में डूब गया। गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। डस्का, अटक और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर में आंधी के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली बंद। नौशहरा में हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल और तारें गिरने से 3 राहगीर जख्मी। तूफान के बायस मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद। जिला भर में बिजली की तरसील मअतल। एबटाबाद और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरीपुर, तहसील गाजी और खानपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। सक्खर में बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। मीरपुर, माथेलो में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जेहलम वैली, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 14 साला लड़का जाँ बहक। सिब्बी के करीबी गांव गुलू शहर में यालाबारी।